Hello students, good morning to you all. Welcome to your online classes of MLP School Rajpura. As you know, our school is conducting online classes for competitive exam. So student, I Priyanka, I am continue our online classes. Today I tell you some basic devices of computer. You know very well computer is an electronic device that perform many functions with help of many devices like input device, output device and processing device. So let's start our topic. Student, first I tell you what is the principle of computer. You know, first we give input, then computer CPU part processing that and we get output or storage. Means या तो हम उसको आउटपुट में लेते हैं या फिर उसको किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, फॉर गिविंग इनपुट वी यूज मैनी डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग के लिए वी यूज सीपीयू एंड आउटपुट के लिए भी वी यूज मैनी डिवाइसेस एंड स्टोरेज के लिए भी वेरियस डिवाइसेस आर यूज्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस various devices. There are the name of the devices: input device, processing device, storage device, output device and users. Users that use computers are called users. Okay, so student, in that video I will tell you what are input devices and processing devices. Input device are those devices that are used to get input in computer. Okay, examples: keyboards, barcode reader, MICR, mouse, etc. So now I tell you some devices. First I tell you keyboard. The keyboard look like a typewriter. It has many switches or many keys. Okay, type of keys. First one is alphabet. The keys A to Z or caps में A to Z are the alphabets key. Numbers, numeric keys 0 to 9 and special key are Windows key, Control, Alt, Delete, numlock. These special keys are used to perform various special function. Okay, next one is function key. Function key are F1 to F12 and each function key has its own function. Okay, next one is mouse. A mouse is a pointing device and input device both. It has 3 buttons, one in between that is a scroll button and left and right button. Okay, using scroll button we can move the cursor on the screen anywhere. Okay, next input device is joystick. Joystick is used to playing games. Next one is scanner. That is also an input device that take inputs as a document and scan that and provide to user. And that one is credit card reader. That is use credit card input as input and we can money transfer from anywhere. Next one is memory card reader. Okay, next input device is barcode reader. That is used to scan or read the barcode that are like that. That is the barcode. Next one is MICR, magnetic ink character recognition. That machine is used in banks to read the checks. And next one is optical character recognition and optical mark recognition. OCR and OMR. OMR is used to read the mark. Sometimes you give exams in OMR system. In that you fill circle in blue or black pen. That machine read all OMR sheets and that is OCR, optical character reader. और ये in OMR sheet we read marks and in that we read characters. Okay, these both are also an input devices. Voice recognition system, webcam and microphone. These are also input device to perform function. So student, in this video I tell you about input devices.
I hope you understand easily what are various input device and use of that devices. So student, learn all these input device and its functioning and write in your notebook. Student, if you see the video properly, you can do that assignment. Define input device, explain the functioning and uses of various input device like keyboard, mouse, VCR, MICR, OMR. Okay. Thank you. Have a nice day. Hello students, welcome to MLP YouTube channel for our special classes. This is Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, these days our MLP group of schools are organizing special coaching classes for their students. Students, in previous class we start our topic Superlative India and completed 10 superlatives. Today we proceed this topic and start from 11 number. Our 11th superlative is the longest river. Which is the longest river in India? The Ganga is the longest river in India. और उसकी लेंथ क्या है, वो कितने मीटर लॉन्ग है, किलोमीटर लॉन्ग है, हमें ये भी बताना है. इट इज 2640 किलोमीटर लॉन्ग. अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड जो सबसे लंबी रिवर है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. जो नील नदी है वो सबसे लंबी रिवर है पूरे विश्व में. लेकिन जब भारत की बात की जाती है तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी कहलाती है भारत में. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट म्यूजियम. लार्जेस्ट म्यूजियम का नेम बताना है. इट इज इंडियन म्यूजियम. इंडियन म्यूजियम इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता. कोलकाता में इंडियन म्यूजियम है जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है. नेक्स्ट इज the most populous city or the most famous city in India. It is Mumbai. Mumbai is the most famous and populous city in India and Mumbai is the capital of Maharashtra. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. और मुंबई जो हमारा शहर है, मुंबई जो हमारी सिटी है, वो हमारी मेट्रो सिटी है. हमारे पास 4 मेट्रो सिटी है इंडिया में, उनमें से मुंबई भी एक मेट्रो सिटी है. 14th superlative is the longest national highway. Which is the longest national highway in India? It is NH7. NH7 है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है. वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज 15th superlative is the state with longest coastal line. हमें उस स्टेट का नेम बताना है. वो कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा समुद्र के किनारे भिड़ी हुई है. इट इज गुजरात. जो गुजरात है उसकी सबसे ज्यादा जो उसकी सीमा है, जो उसकी सीमा रेखा है, वो समुद्र से टच है और गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे लंबी है. नेक्स्ट सुपरलेटिव इज द लॉन्गेस्ट डैम. विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? इट इज हीराकुंड डैम. जो हीराकुंड डैम है वो भारत का सबसे लंबा डैम है और जो कि उड़ीसा में स्थित है. उड़ीसा में हीराकुंड डैम है जो भारत का सबसे लंबा डैम है. आवर नेक्स्ट सुपरलेटिव इज द हाईएस्ट अवार्ड. भारत का ऐसा कौन सा अवार्ड है जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, सबसे ऊंचा जिसका दर्जा है? हमें उस अवार्ड का नेम बताना है. इट इज भारत रत्न. भारत रत्न इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया. भारत रत्न जो अवार्ड है वो भारत का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है. नेक्स्ट 18th नंबर इज द लॉन्गेस्ट सी बीच. हमें बताना है भारत की सबसे लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सी है. इट इज मेरीना बीच. Marina Beach is the longest sea beach in India and it is situated in Chennai. चेन्नई में स्थित है मेरीना बीच जो भारत की सबसे लंबी सी बीच है. नेक्स्ट इज द डीपेस्ट रिवर वैली. सबसे गहरी, डीपेस्ट मीन्स गहरी.
रिवर वैली का नेम बताना है जो कि सबसे गहरी है भारत में। इट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा है रिवर वैली है जो कि भारत की सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी वैलीज हैं। आवर लास्ट सुपरलेटिव इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट हमें बताना है, सबसे ऊंचे एयरपोर्ट का नेम बताना है जो भारत में है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है ले एयरपोर्ट। ले एयरपोर्ट जो है वो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है एंड इट इज इन लद्दाख। जो ले एयरपोर्ट है वो लद्दाख में स्थित है और वो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सुपरलेटिव इंडिया। Please learn this topic and write it in your notebook. Thank you, students. Hello, a warm good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher. Students, today I teach you some questions related to the competitive exams. So let's start. Our first question is units for measuring liquids. जो liquids होते हैं, तरल जो पदार्थ होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? तो कौन सी यूनिट होती है? लीटर एंड मिलीलीटर। लिक्विड को किस में मेज़र करते हैं? लीटर एंड मिलीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द आर्म। जो हमारी आर्म होती है उसकी लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर। जो हमारी फिंगर की टिप होती है वहाँ से लेके टू द एल्बो, एल्बो तक, उसको क्या कहते हैं? क्यूबिट। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज आर स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस एक्सेप्ट। यहाँ पे जितने आपको ऑप्शन दिए हुए इसमें स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस है, किसको छोड़ के? एक ऑप्शन ऐसा है जिसको मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते। रूलर, क्लॉक, स्टिक, थर्मोमीटर। तो ये जो है रूलर, क्लॉक और थर्मोमीटर, ये तो स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस है, बट जो स्टिक है वो नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टिक। नेक्स्ट, मेजरिंग कप्स आर यूज टू मेज़र। जो मेजरिंग कप होते हैं उसको किस लिए क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? कैपेसिटी। नेक्स्ट, इट डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट। कौन है जो अपनी लाइट खुद नहीं बना सकता? सन, अदर स्टार, ग्लो वॉर्म्स एंड मून। तो जो मून होता है वो अपनी लाइट खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरी लाउड साउंड इज। जो बहुत तेज साउंड होती है उसको क्या कहते हैं? लाउड साउंड को डिस्टर्बिंग, अनप्लीजेंट, हार्मफुल फॉर हेल्थ, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी हो सकते हैं। लाउड साउंड को सभी कह सकते, सारी चीज़ें बोल सकते हैं। डिस्टर्बिंग बोल सकते हैं, हार्मफुल फॉर हेल्थ, अनप्लीजेंट। योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस इज मेड फ्रॉम फैब्रिक। इसमें से कौन सी चीज़ है जो फैब्रिक से बनी होती है, कपड़े से बनी होती है? कौन से बनते हैं? कर्टन्स। जो पर्दे होते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम। जो प्लास्टिक होते हैं वो किसके बने होते हैं? केमिकल्स। विच ऑफ दिस इज एन आर्टिफिशियल फैब्रिक। इसमें से आर्टिफिशियल फैब्रिक कौन सा है? नायलॉन। विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल अमॉन्ग दिस। इसमें से स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल बताना है जो स्ट्रोंग है इन सब में से। प्लास्टिक, ग्लास, आयरन, वुड। तो जो आयरन होता है वो क्या है? स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Hello, a very good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher. Students, today we will do experiment for checking density of normal water and salty water. So student, for this experiment we will require some material like 2 lemon, salt, 2 glasses and 1 jug normal water. So let's start. First of all, we will fill first glass with normal water and I will put 1 lemon in this glass. Student, you can see this lemon is totally sink in this glass. This is show the lemon, a density of lemon is higher than the normal water. Now I will fill next glass with normal water and now I added salt in this glass
and dissolve by spoon. Very well. Now I'll put another lemon in this glass. Student, you can see this lemon is float on this water, salty water. So this is so the density of lemon in salty water is less than the water. Okay, so this is the experiment for checking density of normal water and salty water with lemon. Thank you, student. Have a nice day. Hello students, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, from today I will prepare Sainik School for Navodaya School and DTC and other competitive exams. Students, will surely this syllabus will come in your competitive. Today's topic past tense. हमारा प्रेजेंट टेंस है वो लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस. द पास्ट टेंस इज यूज्ड when action is thought and promised to occur in the past. पास्ट में हमारा कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी हमारी थॉट हो रही है, तो वो हमारा किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा. एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल. मैंने क्या खाया? एप्पल खाया. मैंने सेब खाया. ठीक है. टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की क्या टाइप्स हैं हमारे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. फोर्थ है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं. फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज अ सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. इज यूज टू इंडिकेट ए फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. पास्ट में कोई भी ये इसको इंडिकेट होता है, पास्ट में कोई भी हमारा एक्शन कंप्लीट हो रहा है या हमारा वर्क फिनिश हो रहा है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. हमारी पास्ट हैबिचुअल जो पास्ट की हैबिट होती है उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ली, दी, या, ई, गया, आया, इट एक्स्ट्रा. जो भी हमारा, जैसे मैं वहाँ गया, मैंने ये खाया, ये सारे हमारे किस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड यूज़ होती है और ये किसकी? डू की हमारी सेकंड फॉर्म होती है डिड. ठीक है. एंड हमारा जो डिड है ये भी हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा और बाकी में जो हमारा अफर्मेटिव सिंपल जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें ओनली सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. डिड का यूज़ ओनली इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा. वर्ब के हमारे सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है इसमें. एग्जाम्पल देखो, राम वेंट टू स्कूल. अब गो की सेकंड फॉर्म है ये. वेंट हमारी गो की सेकंड फॉर्म है. ठीक है. राम स्कूल गया, किस में आ जाएगा ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. सेकंड है हमारा ही रोट ए लेटर. उसने एक पत्र लिखा. रोट हमारी राइट की सेकंड फॉर्म होती है. ठीक है. राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म रिटन. तो ये सारे हमारे किसके आ जाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. एंड हैव अ नाइस डे क्लास एंड थैंक यू. Today's our topic is states and capital. Dear students, हमारा जो ये टॉपिक है स्टेट्स एंड कैपिटल्स ये चल रहा है. इसके अंदर हमने 12 जो स्टेट्स हैं उनको अपने इंडिया के पॉलिटिकल मैप में फिल कर लिया है. आज हम अदर जो 4 स्टेट्स हैं उनको फिल करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 13th हमारा स्टेट है तेलंगाना. तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद. 14th है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. 15th है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर. और 16th है उड़ीसा. उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर. इन 4 स्टेट्स को हम अपने इंडिया के मैप में फिल करते हैं. स्टूडेंट्स, हमने हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करके और अभी तक 12 जो स्टेट्स हैं उनको फिल कर लिया है. नेक्स्ट हमारा 13th स्टेट.
तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, क्योंकि पहले तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है इसको आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना दिया गया है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तेलंगाना के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। और हाई कोर्ट तेलंगाना के अंदर हाई कोर्ट यहाँ पे तेलंगाना में ही है। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव जी है। जो विधानसभा की जो सीटें हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो है 119 और लोकसभा की 17 सीट्स हैं और राज्यसभा की 7 सीट्स हैं। बॉर्डर्स जो है तेलंगाना से वो कौन कौन से स्टेट के लगते हैं? फर्स्ट, नॉर्थ में इसके महाराष्ट्र स्टेट का बॉर्डर लगता है, ईस्ट में छत्तीसगढ़, वेस्ट में कर्नाटका और साउथ ईस्ट में आंध्र प्रदेश। यानी कि इसके 4 जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज लगती हैं। फर्स्ट मतलब महाराष्ट्र, नॉर्थ में तेलंगाना के नॉर्थ में महाराष्ट्र स्टेट और ईस्ट में छत्तीसगढ़ और वेस्ट में कर्नाटका और साउथ ईस्ट में आंध्र प्रदेश स्टेट की बाउंड्री से लगती है। नेक्स्ट हमारा 14th स्टेट है। यहाँ पे 14th स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश को एक स्टेट कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो है 52। यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ जी। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में है और विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर वो है 23, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। बाउंड्रीज जो है मध्य प्रदेश से वो कौन कौन से स्टेट की लगती है? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसके चारों तरफ से ही अलग अलग स्टेट्स की इससे बाउंड्रीज लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगती है। साउथ ईस्ट में इस साइड ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है। साउथ में महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान और वेस्ट में गुजरात की बाउंड्री मध्य प्रदेश स्टेट से लगती है। नेक्स्ट हमारा 15th स्टेट। 15th हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और छत्तीसगढ़ को एक स्टेट कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को एक स्टेट बनाया गया था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में वो है 27। सीएम जो यहाँ के हैं वो हैं भूपेश बघेल जी। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 90 है, 90 सीट्स हैं। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ जो स्टेट्स है इसके बाउंड्रीज जो कौन कौन सी स्टेट की लगती है? नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश की और नॉर्थ ईस्ट में झारखंड और साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र की बाउंड्री छत्तीसगढ़ से लगती है। 16th हमारा जो स्टेट है वो है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा को एक स्टेट बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को एक स्टेट बनाया गया था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर वो है 30 डिस्ट्रिक्ट, 30 हैं। हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट है यहाँ पे। और यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक जी। विधानसभा की जो सीटें हैं
वो है 147। लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स हैं। बॉर्डर्स जो है इस स्टेट के कौन कौन से स्टेट से टच होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में झारखंड, ये जो स्टेट है झारखंड, नॉर्थ वेस्ट में छत्तीसगढ़ और साउथ में आंध्र प्रदेश की बाउंड्री इस स्टेट से टच होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस 4 स्टेट्स। अभी तक हमारे 16 स्टेट्स हो चुके हैं। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड पंजाब, फोर्थ हरियाणा, फिफ्थ राजस्थान, सिक्स्थ गुजरात, सेवंथ महाराष्ट्र, एट्थ गोवा, 9th हमारा स्टेट है कर्नाटका, 10th है केरला, 11th तमिलनाडु, 12th है आंध्र प्रदेश, 13th है तेलंगाना, 14th जो हमारा स्टेट है यहाँ पे सेंटर में है मध्य प्रदेश, सेंटर इंडिया में है ये, और 15th है छत्तीसगढ़ और 16th स्टेट है ओडिशा। इसके बाद बेटा हमारे 4 स्टेट इधर बचते हैं। उसके बाद 8 जो स्टेट है वो इधर ईस्ट इंडिया की तरफ हमारे बचेंगे। इनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। Hello students, a very warm morning to everyone and welcome to online classes. I hope you will enjoy your studies which is helpful for your competitive exam. So let's start today's cursive writing. Notice what you do today can improve all your tomorrow. आज आप जो कर रहे हैं वह आपके सभी कल को सुधार सकता है। Now we will start our cursive writing. There were two gardeners comma Albert and Holmes full stop Albert's mother was very sick full stop he wanted to make her happy full stop one day comma Albert and Thomas
were working in the palace garden full stop. Suddenly comma Albert saw some lovely flowers So students, please write this page in your notebook and thank you. Have a nice day. Good morning students. Myself Bala Yadav from MLP International School, Rajpura. Okay students, let's start our reasoning classes and our topic is insert the missing. Students, let's start our reasoning classes, class second to 5th, and our question number first is how many months are there in 6 year and 3 month. 6 year 3 month में टोटल कितने मंथ होंगे? तो देखिए बेटा 1 ईयर में कितने होते? 12 मंथ. तो 6 में होंगे 12 6 72 और 72 में हम इस 3 मंथ को प्लस कर देंगे तो कितने हो गए टोटल? 75 मंथ. सेकेंड ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इफ डे बिफोर यस्टरडे इज इट वाज मंडे. आज जो दिन है उसके यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल और उसके पहले क्या था? मंडे. तो देखो मंडे था उसका मतलब हमारा आज क्या है? वेडनेसडे. और उसके यस्टरडे क्या था? ट्यूसडे. और उससे पहले क्या था? मंडे. तो अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट डे विल फॉल ऑन डे आफ्टर टुमारो. तो जो इसके बाद वेडनेसडे के बाद टुमारो कल क्या होगा? थर्सडे. और थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे. तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 3 ईयर 3 मंथ. 3 ईयर 3 मंथ में कितने वीक्स होंगे? कितने होंगे बेटा? 169. कैसे आए हमारे 169? लेट्स वी चेक. 1 ईयर में कितने होते हैं? 52. तो 3 ईयर में कितने हो गए? 156. अब 3 मंथ का निकालना है तो हमें 3/12 करेंगे, फिर कट करेंगे तो 1/4. तो 52 मल्टीप्लाई 1/4 कट किया हमने 13. अब इन दोनों को जोड़ दिया 169. ओके. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ is a basketball court is like a rectangle 20 meter long and 10 meter wide. What is the total sum of its length and breadth? एक बास्केटबॉल ग्राउंड है जिसकी वो रेक्टेंगल की शेप में है, लेंथ है उसकी 20 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर. उसका सम निकालना है लेंथ और ब्रेथ का. तो देखिए बेटा ये 20 है तो ये भी क्या होगी? 20. 20 प्लस 20 40. ये 10 है तो ये भी 10 होगा. 10 और 10 20. 40 में हम 20 प्लस करेंगे 60. या आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी. ये पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ज्योति वॉच्ड हर फेवरेट प्रोग्राम फ्रॉम 2:15 PM to 2:45 PM. 2:15 से 2:45 तक एक अपना फेवरेट प्रोग्राम देखती है. हाउ लॉन्ग डिड द प्रोग्राम लास्ट. तो जो हमारा प्रोग्राम था वो कितना लंबा चला या कब कितने टाइम तक चला? तो देखिए बेटा कितने टाइम तक चला? 30 मिनट तक. क्यों? देखो 2:15 था और 2:45 तक उसने देखा. तो हम इसमें क्या करेंगे? 30 मिनट करेंगे प्लस तो 45 हो गया ना. 2:45. या आप 2:45 में 2:15 माइनस भी कर सकते हैं तो 30 आ जाएगा. या आप टाइमिंग के अनुसार भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. ये फिगर हमारे पास गिवन है
और इसमें पूछा है कितनी ट्रायंगल है। तो देखो बेटा ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये बीच में दो सर्कल है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ये जो इसका फेस बना हुआ है ये है। तो टोटल कितनी ट्रायंगल हो गए हमारे पास? 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और अपनी रीजनिंग के अच्छे से रिवीजन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज का सुविचार है, जिंदगी में तब तक हार मत मानो जब तक कि कामयाबी झुककर सलाम ना करे। अर्थात हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, तब तक परिश्रम करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपना मंजिल, अपना लक्ष्य प्राप्त हो। अब हम अपना सुलेख शुरू करते हैं, जिसका विषय था शर्म का महत्व। संसार के महान से महान व्यक्तियों ने अपना जीवन बहुत छोटे रूप से शुरू किया। लेकिन अथक परिश्रम करके वे उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गए। सत्य तो यह है कि संसार के बड़े और महान लोगों ने जीवन में छोटे से छोटा समझा जाने वाला कार्य भी पूरी लगन और श्रद्धा के साथ
किया है। तो बच्चों आप सभी को भी सुलेख सुंदर राइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल हेतु विशेष कक्षाएं प्रतियोगी परीक्षा के लिए। As I told you in previous class that we are focused on the preparation for Navodaya school, Sainik school and various competitive exam. तो let's start today's topic. आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। हमने कल भी पर्यायवाची शब्द पढ़ा था और आज भी हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। आज दिनांक है 11 जुलाई 2020। पर्यायवाची शब्द की कल हमने परिभाषा पढ़ी थी। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द समानार्थ बताए उसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची का दूसरा हमने कल भी आपको बताया था समानार्थी शब्द, यानी जिसका अर्थ समान हो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो हम आगे अब पढ़ते हैं। इसमें शब्द है दानव। तो हमें दानव के पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, याद करने हैं। तो दानव के कौन कौन से हैं? राक्षस, दैत्य, निशाचर। ये तीन इसके पर्यायवाची शब्द बोले या समानार्थी शब्द बोले, इन चारों का एक समान ही अर्थ होता है, इसलिए इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अगला है वर्षा। वर्षा का समानार्थी है बारिश, मेघ, वृष्टि। अगला है बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची होगा नयन, लोचन, नेत्र। पर्यायवाची शब्द हम हर क्लास में पढ़ते हैं। आने वाली क्लासों में भी पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। अगला निवेदन, उसका होगा अनुरोध, विनती, प्रार्थना। अगला है कपड़ा, वस्त्र, वसन, परिधान। उससे अगला अभिमान, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा गर्व, घमंड, अहंकार। ये चार इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका? हम क्या बोलेंगे इसको? समानार्थी शब्द, यानी जिसका अर्थ समान हो। अगला शब्द है चांद, जिसका पर्यायवाची है चंद्रमा, शशि, रजनीश। ये तीनों इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला है अनुपम। अनुपम को हम अनोखा भी बोलते हैं, निराला भी बोलते हैं और अतुल भी बोलते हैं। ये सारे समानार्थी शब्द हैं। उससे अगला है पुत्री। पुत्री के समानार्थी शब्द होंगे बेटी, कन्या, सुता। उसके बाद है मोर, मयूर, केकी, सिखी। ये किसके हैं? मोर के। उससे अगला है भौरा। भौरा को हम बोलते हैं अली, मधु, मधुकर। ये किसके पर्यायवाची हो गए? भौरा के। और पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थी शब्द। उससे अगला है घोड़ा। घोड़ा को हम अस भी बोलते हैं, घुटक भी बोलते हैं और है भी बोलते हैं, जो चारों ही समान अर्थ वाले हैं। से अगला है दूध। दूध का पर्यायवाची दुग्ध, गोरस और क्षीर। से अगला शब्द है धन। से अगला धन, श्री, द्रव्य, लक्ष्मी। ये धन के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। अगर आपसे पूछे कि धन के कोई दो पर्यायवाची बताओ तो आप कोई भी दो याद कर सकते हो। श्री भी बोल सकते हो, लक्ष्मी भी बोल सकते हो, और तीन पूछे तो द्रव्य भी बोल सकते हो। ये सब क्या है? समानार्थी शब्द। और दूसरा नाम है इसका पर्यायवाची शब्द। ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं और ये हर क्लास में हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की हमने परिभाषा भी पढ़ी, क्या होती है? जो समान अर्थ बताए उस शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और आज हमने 15 पर्यायवाची हमने कल पढ़े और 15 हमने आज पढ़े। हम टोटल 30 पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं। ये हम दानव, वर्षा, बाग, आँख, निवेदन, कपड़ा, अभिमान, चांद, अनुपम, पुत्री, मोर, भौरा,
घोड़ा, दूध और धन, ये हमने आज पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं और इनके हमने 3 समानार्थी शब्द पढ़े हैं जो आपको याद करने हैं। धन्यवाद।